Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we will start a new chapter, quadrilaterals. In earlier videos we have done lines and angles, triangles, and now we are forwarding to quadrilaterals. See, in earlier videos you have dealt with like 1.2 points, lines, angles, two segments. In triangle you have worked with three vertices. In quadrilateral, what is the meaning of quadrilateral? Quad means four and lateral means sides. Quad means four and lateral means sides. Okay, that means four sides. Basically a quadrilateral is which has four sides. A quadrilateral is a closed figure. First of all, a closed figure which has four sides, four vertices at four angles. देखिए जो मैंने यहाँ पे वर्टिसेस लिखा है, अगर हम एक पॉइंट की एक वर्टेक्स की बात करें तो हम वर्टेक्स लिखते हैं. नाउ दिस इज अ सिंगल एंड दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स. ठीक है. नाउ I have written as closed figure which has four sides, four vertices, four angles. Basically this is a quadrilateral according to my definition. ठीक है. This is also a quadrilateral. Here is also a quadrilateral because it has four vertices, four sides and four angles. These are known as vertices. Here are angles and these are the sides. Okay. So basically a quadrilateral which has four sides, four angles and four vertices, four sides. ठीक है. Now there are types of quadrilateral. There are types of quadrilateral. The first one is a random quadrilateral which has no equal side or length, नो इक्वल एंगल्स. ठीक है. मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज़ इक्वल नहीं है जैसे हमारे पास नॉर्मल ट्रायंगल होता था. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ स्क्वायर. अ स्क्वायर, स्क्वायर की खास बात क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल angles are of 90 degree. ठीक है. diagonals are equal and bisect at 90 degree. Now what is diagonal? I have used the word diagonal. Now what is diagonal? That is, see, you have four vertices. ठीक है. join opposite vertex. This the line joining opposite vertex. जो opposite vertex को जो line join करती है उसको हम बोलते हैं diagonals. That is known as the diagonal. ठीक है. This is A, B, C, D is a square and this AC and BD, this AC and BD are the diagonals of a square. ठीक है. Diagonal might be some students को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए clear हो गया होगा कि अगर किसी quadrilateral के हम opposite vertex को meet कराएं या line joining the opposite vertex of a quadrilateral are known as diagonals. ठीक है. Now next is rectangle. rectangle में बेटे हमारे पास opposite sides are equal. rectangle में हमारे पास opposite sides equal होती है. all angles are of 90 degree
its diagonals are also equal. Diagonals are equal. Is it clear? ठीक है, ये सब जो है these are types of quadrilateral. सर्कल, सॉरी, स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा हुआ है एंड कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको पता है. माइट बी डायगोनल इज द न्यू टर्म फॉर यू, बट अदर देन दैट यू आर फेमिलियर विद द फिगर्स. Now, next we have trapezium, parallelogram, rhombus. Before going to rhombus, parallelogram or parallelogram हमारे पास इसका नेम है parallelogram. पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अपोजिट पेयर आर पैरेलल एंड इक्वल. देखिए, जब मैं अपोजिट पेयर की बात कर रही हूँ ना, बेसिकली मैं दोनों पेयर्स की बात कर रही हूँ. ईच अपोजिट पेयर लिख देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, एंड opposite angles are equal. Opposite angles are equal. Diagonals are also equal. Diagonals are equal. ठीक है, पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास? एक ऐसा फिगर, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, दैट इज नोन एज द पैरेललोग्राम. ठीक है, इज इट क्लियर? पैरेललोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th में भी, आगे फ्यूचर में भी, क्योंकि इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट इसी से हम यूज़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट, मतलब ये हमारे क्वेश्चंस को इतना इजी बना देता है ना कि हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है. ठीक है, उसके बाद इसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब वैसे मैं आपको अगले वीडियो में बता चुकी हूँ, 2 सेक्शन. पर ये कैसे बाइसेक्ट करता है? ये डायगोनल इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, जो हमारे पास, मैंने यहाँ भी वर्ड यूज़ किया था स्क्वायर में, कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट कैसे करते हैं. प्रॉपर्टी से हट रही हूँ मैं थोड़ा, एक बार बता रही हूँ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कैसे करते हैं. डायगोनल्स हमारे पास बाइसेक्ट कैसे करते हैं. ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है. ठीक है, इसके डायगोनल्स ये रहे. इस डायगोनल को ये डायगोनल कट कर रहा है. ठीक है, या फिर इस डायगोनल को ये डायगोनल कट कर रहा है इन 2 इक्वल पार्ट्स. दैट मीन दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ. A, B, C, D and here O. That means we can say that OA equals to OC and OB equals to OD. This is what is the meaning of diagonals bisect. Is it clear? ठीक है. Now next property of parallelogram is that is enough. Now next properties of rhombus and kite. ठीक है, rhombus. दिस इज रोम्बस. रोम्बस की खास बात होती है, इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल are perpendicular. ठीक है,
इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, दैट मीन दीज डायगोनल्स आर फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल एट दिस पॉइंट, दीज, ठीक है। यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा था ना जैसे, तो ये एंगल कितने पे बाइसेक्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज द 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कुछ भी हो सकता है ना बेसिकली। आप ये देखिए, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये डायगोनल्स है। वैसे तो डायगोनल्स ऐसे होते हैं, बट हम इसको अगर फ्रेम को चेंज कर दें, ये डायगोनल्स है, ये ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी, तो एंगल कुछ भी हो सकता है ना। बट यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि रोम्बस के डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब उनका कुछ भी एंगल नहीं बनेगा, उनका 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा उनके डायगोनल्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपेजियम। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या खास बात होती है, ट्रेपेजियम में जो एक साइड होती है वो पैरेलल होती है, ए बी सी डी, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ए बी इज पैरेलल टू सी डी and AD and BC are non-parallel side. Non-parallel side होती है, इक्वल है नहीं है हमें नहीं पता, ठीक है, बस मैंने ये बताया कि पैरेलल होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज काइट। काइट तो आप सबने देखा ही है, काइट का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला इलेंगुएटेड होता है, जैसे कि ये, ठीक है, क्लियर? देखिए अब यहाँ पे हमने कितने टाइप्स पढ़े। दिस इज द नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, दिस इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, दिस इज रोम्बस, this is rhombus, here it is trapezium. 1, this is the normal one, 2 square, 3rd rectangle, 4th parallelogram, 5th rhombus and 6th is trapezium and the 7th is kite, ठीक है। इसमें से स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। ऐसा क्यों, ये हम आगे सीखेंगे, मतलब रिजल्ट्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। अभी के लिए ये प्रॉपर्टीज है, आगे जैसे जैसे हम सम करेंगे ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस होते जाएंगी, हम प्रूफ करेंगे, ऑब्टेन करेंगे रिजल्ट्स को, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज में इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपको वो सारी चीज़ें याद रखनी होती है। इज इट क्लियर? नाउ कुछ थ्योरम्स है हमारे पास, ठीक है, कुछ थ्योरम्स है हमारे पास based on parallelogram there are some theorems, that is पहली थ्योरम है if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then given quadrilateral, this is the short form I am using for quadrilateral, that is quadrilateral is parallelogram and this is the short form of parallelogram। अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जस्ट अ रैंडम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और आप उसमें ये चीज़ ले आते हो कि उसके दोनों अपोजिट साइड्स हैं, दो पेयर बनेंगे हमारे पास अपोजिट साइड्स के, जैसे कि एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो उसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। दूसरी चीज़ है हमारे पास, देखिए मैंने साइड्स कैसी बात की है, इक्वल, साइड्स की क्या बात की है, इक्वल, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स, each pair of opposite angles are equal, then also this is a parallelogram, अगर उसके दोनों पेयर, ठीक है, जैसे कि ये पेयर इसके साथ और ये पेयर इसके साथ,
अगर ये दोनों पेयर आपस में किसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल आ जाते हैं तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल आ जाए, दैट मीन ए बी सी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी आ जाए हमारे पास, ठीक है, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। देन ऑल्सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? नाउ you can do the proofs of these theorem easily. How, कैसे करेंगे कैसे नहीं, ठीक है, वो आप कर लेंगे क्योंकि आप सबने ट्रायंगल चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से कर लेंगे। नाउ अब इसके अलावा पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में ईच अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम of sides are equal and parallel, angles are equal, diagonals are equal and bisect each other also. ऊपर लिखा नहीं है मैंने, bisect each other. bisect each other का मतलब वही जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, दिस मैंने यहाँ तो एक्सप्लेन कर दिया बट लिखा नहीं है, OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, ठीक है। इसके प्रूफ ना इजीली हो जाते हैं, कैसे? पहले जो भी हमने थ्योरम्स किए ना उसमें से सिर्फ एक का प्रूफ बता रही हूँ आपको, ठीक है, रेस्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। तो द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, देखिए ये जो थर्ड थ्योरम थी ना इसमें ये था, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट each other then it is a पैरेललोग्राम, OB इक्वल्स टू OD, ठीक है। तो इसका अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो कैसे होगा, देखो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मुझे पैरेललोग्राम दिखाना है, ठीक है, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लूं, इट्स जस्ट अ रैंडम क्वाड्रिलेटरल, ABCD, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में मेरे पास क्या है, इफ दीज बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, दैट मीन ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन OA OC के बराबर है एंड OD OB के बराबर है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मुझे अब इसको क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। सो सिंपल, कैसे? देखो मैं किसी भी दो ट्रायंगल पे काम करूंगी, या तो इन दो पे कर लूँ या इन दो पे। ऐसा इसलिए, देखो अगर इस पे और इस पे करूंगी तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और एक एंगल मुझे वर्टिकली अपोजिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल लेती हूँ, सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस वन एंड दिस वन, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लेती हूँ ना तो ये लेंथ इसके बराबर है, ये कॉमन आ गया, ये इसके बराबर है, थर्ड चीज मेरे पास नहीं है लेने को, ठीक है, थर्ड चीज नहीं है, इसलिए मैं दो वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल्स लूंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इस ट्रायंगल में ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके और ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो मैं बोल दूं ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, बाइसिपिसिटी, ठीक है। अगर ये एंगल इसके बराबर हो गए बाइसिपिसिटी, और हमने पढ़ा है 6th चैप्टर में एक्सियम में कि अगर ये एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो गिवन लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल, दैट मीन AB इज पैरेलल टू CD एंड दिस AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। मतलब आपको इफ वाली कंडीशन लेके चलनी है और देन वाली दिखा देनी है, ठीक है। इसमें क्या था, इफ अब ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, इफ each pair of opposite sides are equal in a quadrilateral, है ना, तो आपको क्या दिखाना था, पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल या साइड्स कोई भी ले लीजिए, ठीक है। अगर मैं साइड की बात करूं, आई एम जस्ट और वर्बली टेलिंग यू, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये साइड है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, कॉमन,
साइड 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 से क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ठीक है, बाय सिंप्लिसिटी एंगल इसको इक्वल दिखा दो। अगर ये एंगल इक्वल आ गई तो ये लाइंस कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, मतलब वो तो बने हैं, हमने बनाए नहीं है, हमने बोला है ये एंगल तो हमने सिंप्लिसिटी से लिख दिया, बट ये एंगल तो ऑल्टरनेट पेयर भी बना रहे हैं। अगर ये एंगल ऑल्टरनेट पेयर बना रहे हैं, दैट मीन दिस लाइन आर पैरेलल। दैट्स इट। इज इट क्लियर? आई होप दिस वीडियो इज useful to you.